السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. سورہ طلاق کی یہ ایک آیت کریمہ ہے. آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، بس لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اسے اللہ نے دیا ہے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ کسی شخص پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا اس نے اسے دیا ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تنگی کے بعد بہت جلدی آسانی فرما دے گا. یہ سورہ طلاق چل رہی ہے اور گزشتہ آیات میں طلاق سے متعلق کچھ مسائل کا تذکرہ کیا گیا اور طلاق کی نہیں بلکہ طلاق کے بعد پیش آنے والے بعض ضروری مسائل کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا. جیسے خاص کر طلاق کے بعد میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے جدا اگر ہو گئے تب ایسی صورت میں اگر بچہ ہو جاتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے، تو ان اس اولاد کو دودھ پلانے کا خرچہ کون دے گا؟ تو دودھ پلانے کا خرچے کا مطلب یہ ہے کہ صرف بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ نہیں بلکہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کو بھی جو محنت کرنا پڑتا ہے جو اپنی ذات کے لیے، وہ بھی خرچ سے ایڈ ہوتا ہے. صرف بچے کو دودھ پلانے سے مطلب یہ نہیں کہ صرف دودھ پلانے تک نہیں بلکہ بچے کے تئیں جو چیزوں کی ذمہ داری یعنی بچے کے تئیں ہوتی ہے، پیمپر وغیرہ کے زمانے کے لحاظ سے دیگر اور چیزیں جو اس کا بھی ہے وہ ساری اس کے اندر داخل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ اگر جو تمہاری بیوی تھی اگر اس کے یہاں ولادت ہو جاتی ہے تو ولادت ہونے کے بعد بچہ تو خرچے پر رہے گا جب تک شعور نہ آ جائے اسے، تو بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری اسی کی رہے گی، تو لہذا دودھ پلانے کا خرچہ بھی تمہیں ہی دینا ہوگا اس کو. ہاں کتنا دینا ہوگا یہ اللہ نے کوئی فکس نہیں کیا. کوئی اللہ تعالیٰ نے درہم، دینار، ریال، 100 پیسے نام دے کر ذکر نہیں کیا. اللہ نے ایک موٹا قانون ذکر فرمایا، کہا کہ تم جس سوسائٹی میں رہتے ہو جہاں بھی رہتے ہو وہاں پر بچوں کی پرورش پر کتنا خرچ آتا ہے، تو اس میں بھی دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. ہر آدمی ایک لیول کا نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی بڑے گھر کا ہوتا ہے یعنی دولت والا ہوتا ہے، کوئی آدمی مڈل کلاس کا ہوتا ہے، کوئی آدمی غریب طبقے سے ہوتا ہے. تو جس لیول کا جو آدمی ہوگا تو اس لیول کے لوگوں کے حساب سے اس کو دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ غریب آدمی مالدار آدمی کے حساب سے تقاضا کرے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی غریب ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی مالدار ہے تو اسے غریب طبقے کا دی جائے ہے، یا کوئی آدمی غریب ہے تو مرضی ہے اگر اچھے شخص ہے الحمدللہ لیکن اس سے بھی کم درجے کا دیا جائے تو ایسا بھی جائز نہیں ہے. تو لہذا اللہ نے پھر یہ فرمایا کہ اگر تمہارا اتفاق اس بات پر نہیں ہو پاتا ہے کہ دودھ پلانے کے مسئلے کو لے کے بھی جو خرچ سے جو مسئلہ ہے اس سے اتفاق نہیں ہو رہا ہے دینے والے کا اور لینے والے کا، ایسا کرو تم کسی اور عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دو، کوئی مسلمان عورت کو مقرر کر دو، وہ رشتے میں رضا ماں بھی ہو جائے گی اور اس عورت کا بھلا بھی ہو جائے گا، وہ بھی دودھ پلائے گی اور وہ بھی حساب کتاب سے لے گی. لازم بات ہے تمہاری یہاں آپسی زدم زدی ہے اور ایک دوسرے کو نیچ دکھانے کے لیے ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے لڑائی ہوتی ہے. وہاں پر اس عورت کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی، اس کی جو محنت ہے وہی لے گی. تو لہٰذا اللہ نے بات ذکر فرمایا. اس سے پھر اللہ نے کہا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، بس لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. اللہ نے ایک بات کی مرد آدمی کو مخاطب کرتے کہا آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، طاقت ہے مال خرچ کرنے کی، اپنی وسعت کے مطابق کرو.
बखीली कंजूसी से नहीं करना। अगर अल्लाह ने अच्छी मामला दौलत से नवाजा तो दूर पर आने वाला जो खर्च है अपनी वसात और हैसियत के मुताबिक जरूर खर्च करो, उसमें बखीली कंजूसी ऐसी बात हरगिज नहीं होना चाहिए। लिहाजा मजीद अल्लाह ने फिर कहा कि वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुनफ़िक़ मिम्मा आताहु अल्लाह, और जिस पर उसका रिज़्क़ तंग कर दिया गया हो तो उसी में से खर्च करो जो अल्लाह ने उसको दिया है। अल्लाह ने उसे मालदार नहीं बनाया, गरीब तबके से उसका ताल्लुक है, अल्लाह ने उसे कमजोर बनाया माली एतबार से, तो जो भी अल्लाह ने दिया उसी में से अपने हस्ब इस्ताअत को खर्च करे और मांग कोई सामने से कोई तकाजा ना करे। सामने वाली जो और उसकी बीवी रह चुकी तो उसकी माली हैसियत और वसात को देखते हुए वो हद से ज्यादा का तकाजा भी वो ना करे और ये भी अपने ऊपर जबरदस्ती का बोझ न लाद दे। भाई मेरे पास ताकत नहीं है लेकिन नहीं मेरा बच्चा है, मैं जो है उसको अच्छी चीज है, हर आदमी अपने औलाद की फिक्र करता, मगर शरीयत ने भी कहा अपने आप को जबरदस्ती हलाकत में डालो, तकलीफ में मुब्तला मत करो, अपने आप को जबरदस्ती जो है परेशानी के आलम में मत ला लो। अल्लाह ने ये भी कहा है, तो लिहाजा अल्लाह ने कहा कि जो अल्लाह जिस तरह से तंग कर दिया गया यानी जो यानी मिडिल क्लास कह सकते हैं, कमजोर गरीब तबके जिससे ताल्लुक हो, तो उसी में खर्च करे जो अल्लाह ने से दिया है, जो अल्लाह ने से दिया है। अल्लाह ने प्यार के उसूल बताया, कहा कि ये हमेशा शरीयत के बहुत सारे अहकाम में उसूल काम आएगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, अल्लाह किसी भी शख्स पर उतनी ही जिम्मेदारी डालता है जितना उसने उसे दिया है। जितनी माल के एतबार से, जिस्म के एतबार से, अकल के एतबार से, हर एतबार से अल्लाह ने अपनी और इंसान को जिम्मेदारी दी है, शरीयत का मुकल्लफ बनाया है जितना अल्लाह ने उसके पास कैपेसिटी दी है। एक मिसाल मैं देता हूं, जैसे बुनियादी तौर पर नमाज हमारा पढ़ते हैं, बुनियादी तौर पर अल्लाह ने मुझे सेहतमंद रखा है, ठहर सकता हूं, बैठ सकता हूं, लेट सकता हूं, सब कुछ मेरे अंदर ताकत है, तो अल्लाह ने मुझे ठहर कर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। मैं सकत रखते हुए बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता, सकत रखते हुए तो मैं बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता। ठहरने की सकत है, जगह में भी कुव्वत के एतबार हर एतबार से, तो ठहर के पढ़ना है मुझे। बुनियादी तौर पर नमाज पढ़ना असल ऐसे ही है, लेकिन एक आदमी ऐसा है, बीमार है, कमजोर है, लागर है, वो खड़े होने के बाद दूर की बात बैठ भी नहीं सकता, तो शरीयत ने कहा कि तुम्हारे पास ताकत नहीं, अल्लाह ने तुमसे वो ताकत छीन ली, लेट के पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते ऐसा भी इशारे से पढ़ो, आपके इशारे से पढ़ो, यही चीज है। तो ये उसूल शरीयत की कई चीजों में आता है, ये आयत करीमा और इसी जैसे दो और भी है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, अल्लाह के पीछे अपनी जिम्मेदारी डालता है जितना उसने अल्लाह ने उसको काम कर दिए। सयजअलुल्लाहु बअद उसरि युसरा, अल्लाह तंगी के बाद जल्द तुम्हारे लिए आसानी फरमा देगा। अल्लाह अगर तुम पर किसी वक्त मजबूरी की हालत है, ऐसे तुम्हें अल्लाह ने मशक्कत में डाला, तकलीफ में डाला, तो ये भी याद रखो और अल्लाह की ज़ात है, तुम्हारे ऊपर से मुसीबत को दूर करने वाली भी है, अनकरीब तुम्हारे ऊपर आसानी भी अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में नाज़िल फरमाएगा। इस सिलसिले में इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया है जो नबी हज़रत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी की रिवायत है, हल्का से हल्की सी ज़ईफ़ रिवायत है, लेकिन दूसरी और भी रिवायत आती यही वाक़े से, तो ज्यादा जिक्र किया जा सकता है बतौर इबरत या बतौर हिम्मत कहते हैं करके। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने अपनी मुस्नद के अंदर हदीस की किताब है उसमें नकल किया है। हज़रत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस में कहते हैं कि पहले लोगों में से, यानी इस उम्मत का वाक़या नहीं, पहले के लोगों का वाक़या है, पहले लोगों में से एक मर्द और एक औरत थी जिनके पास कुछ नहीं था, यानी कि गरीब थे, बिल्कुल बेइंतहा गरीब थे। एक दफा वो आदमी, उसका शोहर सफर से वापस लौटा, अपनी बीवी के पास आया और जब वो लौटा तो बहुत भूखा था, बहुत शदीद तरीन भूखा था, बहुत भूख की शिद्दत थी उसके पास। उसने अपनी बीवी से पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ है, यानी घर में कुछ है जो मुझे मेरा पेट भर सको? उसने जवाब दिया हाँ खुश हो जाओ, हमारे पास अल्लाह का रिज़्क़ आ गया है। बस उसकी बीवी ने उसको खुश करने के लिए बात की, बस उसकी बीवी ने उसके दिल को थामने के लिए, उसके दिल को राहत देने के लिए बात कही है, जबकि घर में कुछ नहीं है। उसने जब उसकी बीवी का जवाब सुना तो उस पर जोर देकर के उससे तलब करने लगा, कहा कि तुझ पर अफसोस है, अगर तेरे पास कुछ है तो जल्दी लेकर के आओ ताकि मेरी भूख मिल जाए और मैं भूख की शिद्दत से तड़प रहा हूं। उसने जवाब दिया हाँ जरा सब्र करो,
जरा खबर करो, देखो शोहर के गुस्से को बात है कि जिंदगी में कहते हैं तज्जिया निगार और साहिब कलम कहते हैं अहले इल्म से, मर्द दो चीजों पर सब्र नहीं कर पाता और औरत को इन दो चीजों का ख्याल रखना अपने शोहर के मामले में जरूरी है। एक नफसानी ख्वाहिशात जो अपनी बीवी के तय होते हैं उसके, वो दूसरा मर्द की भूख, पेट की भूख, ऐसा कह सकते हैं मोटे मोटे अल्फाज में, पेट की भूख और नफ्स की भूख। कभी भी औरत मर्द के इस मामले में हसास रहना चाहिए, औरत को हसास रहना चाहिए। और औरत तो नहीं आती, लेकिन एक बात एक जानकारी के लिए ये औरतों के लिए नसीहत है, ये दो चीज की भूख मर्द को कभी बर्दाश्त नहीं होती। तो उस औरत में भी इसी बात का ख्याल रखते हुए ये बात का थोड़ा सब्र करो, ला रहे उसको नहीं कहने की कुछ नहीं है, क्योंकि सफर से शोहर के सफर से लौटा है, उसे मालूम है घर में कुछ नहीं, लेकिन उसे सवाल क्या धीरे से उसने उसे सब्र को थामने के लिए, भूख की शिद्दत को कम करने के लिए ये बात कहा। तो अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रख रही थी, अल्लाह कुछ इंतजाम कर दे, कुछ दिल में दुआ कर रही है। चुनाव कहती है हत्ता के वक्त गुजरता चला गया, यानी वो चली गई किचन की तरफ, उधर जहां पर भी, लेकिन वक्त लंबा हुआ। उसने कहा अपनी बीवी पर, किस तरह अफसोस है, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो खड़ी हो जाओ, लेकर के आओ, मैं शिद्दत भूख की वजह से निडाल होते जा रहा हूं। चुनाव उसने जवाब दिया, हाँ अभी तन्नूर गर्म हो रहा है, ये जिसमें रोटियां बनाते हैं, तन्नूर गर्म हो रहा है, लिहाजा जल्दी मत करो। और उसने जवाब देकर के खामोश किया। यानी तन्नूर गर्म हो रहा है मतलब ये थोड़ा इंतजार तो टाइम लगेगा, तन्नूर गर्म होना, फिर सर रोटी में बेल करके जो उसमें लगाना, तो लंबा थोड़ा टाइम की जरूरत है, सब्र करो। जब वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, उसे राहत मिली कि है कुछ मुझे मिल जाएगा, राहत मिली। और फिर उसे कुछ कहने वाला था कि औरत ने अपने दिल में कहा कि मैं खड़ी होकर अपनी तन्नूर में देखती हूँ कि वाकई तन्नूर में देखती हूँ कि तन्नूर में भुनी हुई रानों से, जानवर के बकरी के भुनी हुई रानों से भरा हुआ था। रोटी के लिए मैं तन्नूर में लगाई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने गैर से उसके अंदर बकरे के रानों को भर दिया, तन्नूर के अंदर पकड़ नहीं उसके अंदर। और कहती है कि उसकी दोनों चक्कियां आटा पीस रही, कोई पीसा नहीं, ऑटोमेटिकली पीसी जा रही, चक्की गोल फिर रही है। चक्की के पास जाकर उसने क्या किया, फौरन चक्की को झाड़ दिया, यानी करके आटा को समेटने लगी और रोक दिया, और तन्नूर से बकरी की भुनी हुई रानों को निकाल लिया। अबू हुरैरा ने कहा, उस ज़ात की कसम जिससे हाथ में अबुल कासिम यानी अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर वो खातून सिर्फ चक्की से आटे को ले लेती, उसे झाड़ करके उसे वो ना रोकती, तो वो चक्की कयामत की रोज तक आटा पीसती रहती, दुनिया से पैदा उठाती। जैसे जमजम का कुआं है, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, हाजिरा अगर करती कि वो उसको समेट नहीं आजू बाजू करके नहर की तरफ वो जाने लगता, तो सारी दुनिया से शराब होती, ऐसी बात उसके। तो मेरा एक वाक्य है जो नबी के शासन में जिक्र किया साबिक़ा कौम में, तो ये है कि किसने कहा ये वाक्य किस सबके बंधन में, अल्लाह इंसान की मुश्किलात के बाद आसानी पैदा करेगा और उसके लिए खैर का मामला उसके हक में होगा। अल्लाह का सुभान रब्बुल इज्जत हम तमाम को शरीयत के अहकामात में हमें सब्र का मुजाहरा करने वाला बनाए, कुरान और सुन्नत की पाबंदी करने की हमें तौफीक दें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।